اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون. قیامت کے دن ہم تمہارے تمام اعضاء پہ مہر لگا دیں گے. ہم تمہاری آنکھ سے پوچھیں گے آنکھ بتا یہ کیا کرتا رہا, زبان سے پوچھیں گے بتا یہ کیا کرتا رہا, ہاتھ سے پوچھیں گے بتا کیا کرتا رہا. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادع الى سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وبارک وسلم حضور ہدیہ درود السلام پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب القدر واجب الاحترام عزیز بزرگوں, دوستوں, ساتھیوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورہ نحل شریف میں سے ایک آیہ کریمہ کا حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے, جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا ادعو بلائیے الی سبیل ربک, اللہ تعالیٰ کی راہ کی طرف. اے محبوب, اے میرے پیارے حبیب, اے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم, لوگوں کو میری راہ کی طرف بلائیے بالحکمہ, حکمت بھرے انداز میں, والموعظۃ الحسنہ, اور عمدہ طریقے سے, اچھی باتوں سے, اچھی نصیحتوں سے, اچھے انداز میں, محبت بھرے انداز میں, پیار بھرے انداز میں, نرم و گداز اور دل کو لبھانے والا بھانے والے انداز میں آپ لوگوں کو میری راہ کی طرف کیا کیجیے, دعوت دیجیے. آپ ان کو میری طرف بلائیے, آپ نے میری عبادت کی طرف بلائیے, میری بندگی کی طرف ان کو کیا کیجیے, بلائیے. اس آیہ کریمہ کو میں نے جو موضوع گفتگو بنایا ہے اس میں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ نصیحتیں اور حضور کے صحابہ و اہل بیت کے اقوال مبارکہ کی روشنی میں کچھ نصیحت بھری ان کی باتیں عرض کرنی ہیں, جن کے اندر حکمت بھی ہے اور بہت پیارا ان کا انداز بھی ہے. دعا کرو اللہ ان کا جس طرح انداز اچھا تھا, کردار اچھا تھا, اللہ ان کی تعلیمات کی برکت سے اللہ ہمارے کردار کو بھی پاک فرمائے, اللہ ہمیں بھی اچھے کردار والا بنائے, اور اللہ ہمیں عمل کی طرف دوڑنے والا, اللہ کے ذکر کی طرف, اللہ کی یاد کی طرف آنے والا اللہ پاک ہمیں بنائے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا بلائیے انہیں اللہ کے راستے کی طرف. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وبارک وسلم ہر آدمی سے, ہر قبیلے سے, ہر علاقے سے تعلق رکھنے والے سے ان کے مزاج اور ان کی طبیعتوں کے مطابق حضور گفتگو فرماتے تھے. حضور کی کوئی لمبی گفتگو نہیں ہوتی تھی, بہت مختصر گفتگو ہوتی تھی اور حکمت سے مالا مال گفتگو ہوتی تھی. حضور نے فرمایا مجھے جو ہے وہ اللہ پاک نے یہ بھی ایک نعمت اور معجزہ عطا فرمایا ہے کہ میرا کلام بہت مختصر ہے لیکن اس کے اندر اللہ نے حکمتیں بہت رکھی ہیں. تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیہات میں رہنے والوں سے ان کے حساب سے گفتگو فرماتے, شہر کے رہنے والوں سے ان کے حساب سے گفتگو فرماتے, پھر ان میں مختلف جو شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے تھے حضور ان کے پیشے کے اعتبار سے ان سے کیا کرتے تھے, گفتگو فرماتے تھے. مقصود لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہوتا تھا.
लोगों को क्या है, अल्लाह की तरफ बुलाना होता था। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया कि ए महबूब, अगर आप सख्त दिल होते तो ये जो आज आप पे आपके सहाबा जाने निछावर कर रहे हैं, ये आपके दाएं बाएं से बिखर जाते। आपके अंदर अल्लाह पाक ने जो है वो एक रिक्कत कल्बी रखी है, आपके अंदर एक शफकत रखी है, आपकी मोहब्बत ने इन्हें इस कदर मुतासिर कर दिया है कि ये आपके इशारे पर दीवानावार अपनी जानों के नजराने पेश करना अपने लिए सादत समझते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया हिकमत से आप उनको बुलाइए। अब मैं आपके सामने अपनी क्या हिकमत झाड़ू, मैं तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की, अल्लाह के प्यारों की बातें अर्ज करूंगा, और उसमें मकसूद मेरा ये होगा कि अल्लाह मुझे भी और सुनने वालों को भी अल्लाह हिदायत नसीब फरमाए और सिरात मुस्तकीम पे चलाए और इनाम याफ्ता उसके नवाजे हुए लोगों में अल्लाह हमारा शुमार फरमाए। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुजूर दुआ करते, या अल्लाह मुझे अपनी मोहब्बत अता फरमा। क्या फरमाते? मुझे अपनी मोहब्बत अता फरमा। हुजूर अल्लाह की मोहब्बत से नवाजे हुए। अल्लाह ने सबसे ज्यादा जिसे अपना कुर्ब अता फरमाया है वो मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है, और अल्लाह ने अपने महबूब को अपना हबीब बनाया है, महबूब बनाया है। हुजूर तो पहले ही अल्लाह की जो है वो मोहब्बत हासिल किए हुए, लेकिन हुजूर यहाँ तालीम उम्मत दे रहे हैं कि सिर्फ अपनी दुआओं में दुनिया ना मांगा करो। आज अगर हम अपनी दुआओं का खुलासा निकालें, निचोड़ निकालें, तो हमारी दुआओं में क्या होगा? या अल्लाह मकान दे दे, कारोबार दे दे, बच्चों की नौकरियां लग जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, फलां हो जाए। इल्ला कलील किसी की दुआओं में ये भी हो कि या अल्लाह मुझे अपनी मोहब्बत दे दे, या अल्लाह मुझे अपने महबूब की मोहब्बत दे दे, अपनी बंदगी की तौफीक दे दे। ये बहुत आपको कम मिलेगा। लेकिन हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम दिया कि औलाद भी अल्लाह से मांगना, और अल्लाह दे दे तो ये भी उसकी नेमत है। औलाद के लिए खुशियां मांगना भी बुरी बात नहीं है, अच्छा मकान मांगना भी बुरी बात नहीं है, बैंक बैलेंस, रिज़्क़ हलाल, ये सारी चीजें अल्लाह से मांगो। लेकिन इन तमाम नेमतों से बढ़कर जो अल्लाह की जनाब से तुम्हें नेमत हासिल होगी ना, वो क्या है कि उससे उसकी मोहब्बत मांगो कि अल्लाह में अपने करीब कर। बताइए, जब आपको आपका रब मिल गया, फिर वो रब जिससे मोहब्बत करता है तो दुनिया की नेमतें तो उनके कदमों में डाल देता है। तो इसलिए जब भी आप हाथ उठाएं तो आप दुनिया की नेमतें भी मांगे, लेकिन उससे उसकी मोहब्बत भी मांगे, उससे उसका कुर्ब भी मांगे। और फिर हुजूर फरमाते, या अल्लाह मुझे उनकी मोहब्बत भी अता कर जो तुझसे मोहब्बत करते हैं, मुझे उनकी भी मोहब्बत दे। तो इससे हमें पता चला कि जो लोग अल्लाह से मोहब्बत करते हैं हमें उनसे मोहब्बत करनी चाहिए। ये मोहब्बत भी अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह की जात तक रसाई का वसीला और जरिया। और फिर हुजूर दुआ मांगते, या अल्लाह मुझे उस अमल की तौफीक अता फरमा जो अमल करूं तेरे करीब कर दे, जो क्या कर दे? तेरे करीब कर दे। उस अमल की मुझे क्या है? तौफीक अता फरमा। और या अल्लाह अपनी मोहब्बत को मेरे नजदीक इतना महबूब कर दे, जितना, इससे भी ज्यादा महबूब कर दे जितना एक प्यासे को ठंडा पानी महबूब है। इससे भी बढ़कर अपनी मोहब्बत को मेरे क्या कर दे? करीब कर दे। आज हम दुनिया से मोहब्बत तो करते हैं, लेकिन अपने रब से मोहब्बत अगर करते होते तो महबूब जो मुहिब से मुलाकात का हमेशा इश्तियाक रखता है और हर वक्त तड़पते रहता है कि किसी तरह महबूब से मुलाकात हो जाए। अगर हम मुसलमान अल्लाह से मोहब्बत करते तो आज सुबह की नमाजों में मस्जिदें बेराम ना होती। आज हमारी मस्जिदों की सफ़ें जो है वो अल्लाह के हुजूर गिरिया आहुजारी न करती, या अल्लाह हम पर कब सजदे हो, तेरे बंदे कब अपने घरों को छोड़ के आके तेरे घर को आबाद करेंगे। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हुजूर ने देखें कितनी प्यारी तरबियत और कितनी प्यारी हमें तरगीब दी कि हुजूर ने फरमाया, जब भी हाथ उठाओ अल्लाह से दुनिया की नेमतें भी मांगो, लेकिन अल्लाह से उसका प्यार भी मांगो कि तुम अल्लाह के प्यारे बन जाओ, अल्लाह के करीब हो जाओ, अल्लाह तुम्हारे करीब हो जाए, तुम अल्लाह की रहमत को पालो। उन आमाल की तौफीक मांगो जो अल्लाह के करीब कर दे, अल्लाह की रहमत के करीब कर दे, और अल्लाह की मोहब्बत को अपने लिए तमाम नेमतों से बढ़ के अपने लिए सरमाया मांगो। अल्लाह अकबर, अल्लाह। हुजूर के एक सहाबी हैं हजरत उक़बा बिन आमिर, ये तिरमिज़ी शरीफ में रिवायत है, पहली भी और ये भी।
انہوں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا و آخرت کی نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤں، یعنی دنیا میں بھی نجات پا جاؤں اور آخرت میں بھی نجات پا جاؤں۔ اب یہ دونوں مرحلے جس آدمی کو اللہ نے ان سے کامیاب کر دیا وہی کامیاب ہے، وہی ہدایت یافتہ ہے، وہی کامیاب ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی کی بات کو سنا، سوال کیا نا انہوں نے، تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عقبہ، اگر تم چاہتے ہو کہ تم دنیا اور آخرت میں نجات پا جاؤ تو پھر 3 کام کرو۔ کتنے کام؟ 3 کام۔ بظاہر وہ 3 کام سننے میں بہت ہلکے ہیں، کیا ہی اچھا ہے کہ آج سے ہم سننے کے بعد ان کو اپنا لیں۔ سب سے پہلی بات جو حضور نے ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، اپنی زبان کو قابو رکھو، اپنی زبان کی حفاظت کرو، اپنی زبان کی نگرانی کرو۔ آج اگر ہم دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں اکثر لڑائیاں فساد ہمارے اس زبان کی سختی کی وجہ سے، زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے ہو رہے۔ آج ہمارے معاشرے میں گالی عام ہے، کون دیتا ہے؟ کس سے دیتا ہے؟ زبان سے۔ ہم چغلی کس سے کرتے ہیں؟ ہم غیبت کس سے کرتے ہیں؟ برے کام جو زبان سے ہونے والے ہیں وہ سارے ہم کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا، ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ تم 2 چیزوں کی مجھے ضمانت دے دو، مجھ سے اس کے بدلے میں جنت کی ضمانت دے دو۔ 2 چیزوں کی ضمانت دے دو کہ اس کا صحیح استعمال کرو، اس کا غلط استعمال نہیں کرو گے۔ حضور نے ایک بات فرمائی، جو 2 جبڑوں کے درمیان یہ جو زبان ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری مجھے دے دو کہ اس کا صحیح استعمال کرو گے، اور جو 2 رانوں کے درمیان تمہاری شرمگاہیں ہیں ان کے استعمال کا مجھے صحیح حفاظت کا ذمہ دے دو، اس کے بدلے میں مجھ مصطفیٰ سے جنت کی ضمانت لے۔ آج ہماری زبانیں کینچیوں کی طرح چلتی ہیں، لوگوں کے دلوں کو کاٹتی ہیں، رشتے کاٹتی ہیں، لیکن اگر ہماری مسلمان کی زبان نہیں چلتی نا تو قرآن کی تلاوت میں نہیں چلتی، اللہ کے ذکر میں نہیں چلتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھنے میں نہیں چلتی، نیکی میں نہیں چلتی، نیکی کی دعوت دینے میں نہیں چلتی۔ جو چوک چوراہے پر کھڑے ہو کر ماں بہن کی گالیاں دے سکتا ہے، اگر اسے دین کی دعوت دی جائے، اسے کہا جائے کہ یہ حضور کی حدیث پڑھ کے لوگوں کو سناؤ، وہ کہے مجھے شرم آتی ہے۔ شرم یہاں نہیں آنی چاہیے تھی، شرم وہاں آنی چاہیے تھی۔ جہاں شرم کرنی چاہیے وہاں ہم نہیں کرتے، اور جہاں شرم نہیں کرنی چاہیے تھی وہاں ہم شرمسار ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور نے پہلی بات کیا فرمائی؟ اگر دنیا آخرت میں تم چاہتے ہو کہ نجات پاؤ، کامیاب ہو جاؤ، کیا کرو؟ اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ انسان سب سے بہترین محافظ ہے خود، اسے کسی مولوی کسی پیر سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ ہم صبح شام اپنی زبان کا کیسا استعمال کرتے ہیں۔ اگر صحیح کرتے ہیں مبارک ہو، اگر غلط استعمال کرتے ہو تو پھر اس کو صحیح کرو، اس کو کیا کرو؟ صحیح کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج ہم موبائل کو کئی بار اپنی جیب سے نکال کے دیکھتے ہیں کہ کسی کا میسج تو نہیں آیا، کسی کی کال تو نہیں آئی۔ کیا ہی اچھا ہے کہ مسلمان کئی بار اپنے دل پر، اپنے زبان پر، اپنی آنکھوں پر، اپنی سماعت پر بھی نظر دوڑائے کہ آج میں نے کسی کی غیبت تو نہیں سنی، آج میں نے کسی کی غیبت تو نہیں کی، آج میرے ذہن میں کسی مسلمان کے حوالے سے برے خیالات تو نہیں آئے۔ اللہ اکبر۔ آج میرے دل میں کسی کے حوالے سے برائی تو نہیں آئی۔ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ بے شک تمہاری سماعت، کیا سنتے رہے ہو، کیا تمہیں سنایا گیا ہے۔ آج ہماری دوستیں بھی ایسے ہیں نا، ایک دوسرے کو، ہمارے نوجوان بہت کم ہے ایسا کہ کسی عالم کی تقریر بھیج دیں، کوئی نعت شریف بھیج دیں، کوئی منقبت، کوئی حمد بھیج دیں، کوئی حدیث بھیج دیں۔ آج گانے ایک دوسرے کو بھیجے جاتے ہیں، برائی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ قرآن پاک میں کہہ رہا ہے تمہاری سماعت کے متعلق بھی ہم تم سے پوچھیں گے، تمہاری بصارت کے متعلق بھی ہم تم سے پوچھیں گے، اور تمہارے منہ کے متعلق بھی ہم تم سے سوال کریں گے، کیا سنتے رہے، کیا دیکھتے رہے، کیا بولتے رہے۔ اور ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، ہم تم سے نہیں پوچھیں گے اس دن، الیوم نختم علی افواہہم
वतुकल्लिमुना ऐदीहिम वतशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। कयामत के दिन हम तुम्हारे तमाम आज़ा पे मोहर लगा देंगे। हम तुम्हारी आंख से पूछेंगे, आंख बता ये क्या करता रहा। जुबान से पूछेंगे, बता ये क्या करता रहा। हाथ से पूछेंगे, बता क्या करता रहा। आज तो हम अपनी बुराई को भी बड़े अच्छे अंदाज में उसका दिफा करते हैं और हम कहते हैं हम बड़े शातिर हैं, बड़े चालाक हैं। लेकिन एक दिन आएगा जहां तुम्हारी चालाकी खत्म हो जाएगी, वहां तुम्हारे आज़ा तुम्हारे मुतालिक गवाही देंगे। ये मैं किसी बुजुर्ग का कौल नहीं बयान कर रहा, ये मैं कुरान की आयत बयान कर रहा। उस दिन हर एक के आज़ा बोलेंगे कि ये मौसूफ लोगों के सामने क्या थे और तन्हाई में क्या थे, ये खानदान में क्या थे और दोस्तों में क्या थे, अपने माँ बाप के लिए क्या थे और अपने मोहल्ले वालों के लिए क्या थे। जो जो कर रहे हो ये हर एक हमारे अमल की अक्सबंदी हो रही है। कयामत के दिन जैसे आप कोई फिल्म देखते हैं ना, उसमें एक स्टोरी होती है, हर चीज नजर आ रही होती है। कयामत के दिन तुम्हारी सारी फिल्में खोल खोल कर तुम्हारे सामने बयान की जाएंगी और तुम देखो। अल्लाह अकबर। तो अपनी जुबान का अच्छा इस्तेमाल करो, अपनी जुबान को अल्लाह की याद में लगाओ, अपनी जुबान को अल्लाह के कुरान की तिलावत में मसरूफ रखो, अल्लाह के जिक्र में मसरूफ रखो, दुरूद शरीफ पढ़ा करो इस जुबान से और अल्लाह से अपनी जुबान के गलत इस्तेमाल पर गुनाहों की माफी भी मांगा करो और अपनी समातें पाक करो। जुबान मैली हो, आंखें पाक ना हो, समात पाक ना हो, नमाज में दिल नहीं लगता, अच्छी बात अच्छी नहीं लगती, माँ बाप के चेहरे को देखने को दिल नहीं करता। ये पाक होंगी तो नमाज में भी सुरूर आएगा। क्या? नमाज में भी सुरूर आएगा, कुरान में भी दिल लगेगा, नेकी की तरफ भी रुझान होगा। अगर ये सारी चीजें मैली हुई, सिर्फ इस्तिग़फ़ार जुबान से पढ़ने से तो काम नहीं चलेगा। कुत्ता कुएं में खड़ा रहे, मर जाए और पानी पाक करने के लिए डोल निकाल लिए जाए तो क्या ख्याल है, कुआं पाक हो जाएगा? पहले कुत्ते को निकाला जाएगा, फिर शरीयत के रूप से डोल निकाले जाएंगे तो फिर कुआं पाक हो जाएगा। तस्बीहात भी उसी वक्त काम आती हैं जब आप अमली तौर पर कदम उठाएं, कोशिश करें। अल्लाह अकबर। दूसरी चीज मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई कि तुम्हारा घर तुम्हारे लिए काफी हो जाए। तुम्हारा घर तुम्हारे लिए क्या हो जाए? ये आज से 1400 साल पहले किसी ने पूछा था, दुनिया आखिरत की निजात किस में है? हुजूर ने उस दौर में फरमाया था कि काम हो तो घर से निकलना, वरना अपने घर में ही रहना, इसी में तुम्हारी आफियत है। आज हमारा दिन कहाँ गुजरता है? होटलों पर, चौकों पर, है गली कोनों पर, किसी की ग़ीबत सुनी, किसी को गाली दी, कोई देखा दिल में बुरा वसवसा, मुसलमान के हवाले से बुरा ख्याल आया है। आज हमारा हुजूर उस दौर में एक सहाबी को फरमा रहे हैं, अगर तू निजात चाहता है तो ज्यादा वक्त अपने घर में रहकर, बाहर वक्त ना, वरना फितने जाया हो जाएगा। किसी ग़ीबत सुनेगा तेरा अमल बर्बाद हो जाएगा, किसी का कोई कुछ देखेगा हसद पैदा होगा तब भी तेरे अमल बर्बाद होंगे। फरमाया तू अपने जरूरत के लिए घर से निकल और जब जरूरत तेरी मुकम्मल हो जाए फौरन घर में आ, अपने घर में रहे, अपने बच्चों के साथ रहे, बीवी के साथ रहे, अपने अहले खाना के साथ वक्त बिता, बाहर ज्यादा वक्त ना लगा, कहीं फितने की नजर हो जाएगा, तेरा किया धरा सब लुट जाएगा। आज हम दुनिया का माल संभालने के लिए कितनी हिफाजत करते हैं भाई, हैं? आपने किसी को देखा है कि किसी का सोना बाहर पड़ा हो, घर में ऐसे ही पड़ा हो? कहाँ रखते हैं हम उसको? लॉकर में, वो भी अलमारी के अंदर एक और लॉकर होता है, उसके अंदर फिर एक है, पता नहीं क्या क्या कोई लौट के ना ले जाए। और ये जो हमारे आमाल है, इसके सामने सोना भी मुकाबला नहीं कर सकता। अरे सोना तो यही रह जाएगा, आपके काम जो आएगी वो आपकी नमाज, आपका रोजा, सदका खैरात, आमाल सालिया, अजर अजीम जो अल्लाह से आपने हासिल किया है, इस दौलत की भी हमें फिक्र करनी चाहिए, इसका भी हिसाब लगाना चाहिए, इसको भी मजबूत बाउंड्री के अंदर रखना चाहिए। कहीं शैतान आके, कोई फितना आके इस हमारी दौलत को लूट के ना चला जाए, कहीं खाली हाथ ना अल्लाह के लूट चले जाए। हमें इस दौलत की हिफाजत भी करनी चाहिए। वो लुट जाए कोई बात नहीं, ये लुट गई तो दुनिया भी बर्बाद और आखिरत भी बर्बाद। और तीसरी चीज हुजूर ने फरमाया, अपने गुनाहों पर रोया करो। सहाबी है, मासूम अनिल खता है, अल्लाह ने उनको हिफाजत में रखा हुआ है। खता मुमकिन है पर होगी नहीं, क्योंकि अल्लाह ने हिफाजत का हिसाब लगाया।
उसके बावजूद हुजूर फरमा रहे कि अपने गुनाहों को याद करके रोया करो। आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, कदम कदम पे गुनाह है, मुंह खोले खड़े हैं, बुराई दावत दे रही है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो हमें तो सारा दिन आंसू बहाने चाहिए, रोना चाहिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, कभी अकेले बैठकर, आज किसी को कारोबार में नुकसान हो जाए ना, तो वो अकेले जगह तलाश करता है, कोई होटल मिल जाए, कोई ऐसा वीराना मिल जाए जहां वो बैठकर सोचे क्यों मुझे नुकसान आया। कभी इंसान को बंद कमरे पर या सोने से पहले इंसान को सोचना चाहिए कि मेरे जिंदगी के इतने साल गुजर गए, मैंने कितनी नेकियां की हैं, कितनी अल्लाह की फरमाबरदारी की है। आज अगर मुझे मौत आ जाए तो मैं अल्लाह के हुजूर सामना कर सकता हूं? अगर वो मुझसे पूछे नमाजें पढ़ी थी, क्या मेरे नमाजें जिंदगी की पूरी है, क्या मैंने अच्छे अमाल किए, मेरा किरदार कैसा है, ये सारी चीजों का हमें मुहासबा करना चाहिए। अगर हमने कोताही की है, लापरवाही की है, अभी वक्त है हम अपने रब से रुजू कर लें तो अल्लाह हमारी गलतियों को माफ फरमा देगा। मौत के बाद फिर मोहलत का दरवाजा क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। अल्लाह अकबर। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पांच चीजों से पहले गनीमत जानो। पांच चीजें ऐसी हैं कि अगर वो मिल जाएं तो उसके बाद आने वाली पांच चीजों से पहले, आने से पहले इन पहली चीजों को क्या करो, गनीमत जानो, इनकी कदर करो, इन नेमतों की क्या करो, कदर करो। हुजूर ने फरमाया, अपनी जवानी को अपने बुढ़ापे से पहले गनीमत जानो। ऐ हुजूर की उम्मत के नौजवानों, आपकी इबादत अल्लाह को भी बड़ी महबूब है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बड़ी महबूब है। जब एक जवान तौबा करता है तो अल्लाह पास के कब्रिस्तान वालों पर होने वाले अजाब को भी उठा लेता है। अल्लाह की रहमत इतनी खुश होती है। और जब एक बूढ़ा आदमी तौबा करता है, सिर्फ उसके गुनाह माफ होते हैं। हुजूर ने फरमाया, मैं भी अल्लाह का हबीब हूं, और वो जवान जिसने अपनी जवानी अल्लाह की फरमाबरदारी में गुजार दी, वो भी अल्लाह का हबीब है। और आप चाहते हैं कि अल्लाह आपसे मोहब्बत करे, कयामत के दिन अल्लाह की रहमत आपका इस्तेकबाल करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत के दिन अर्श का साया पाने वालों में से वो नौजवान भी अल्लाह का अर्श का साया पाएगा जिसने अपनी जवानी बेदाग गुनाहों से पाक अल्लाह के रसूल की फरमाबरदारी में गुजारी है। ऐसे नौजवान से कहा जाएगा, तूने अपनी जवानी है, इसकी मस्ती, इस जवानी की शोखी है, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, नौजवान ऐसे डिजाइन फैशन, अल्लाह औरतें भी शर्मा जाए। ये हमारे माशरे में आप इनके बाल देखें, आप इनके जो है वो मेकअप देखें, नौजवानों के गलत हम जो है वो सोबतों में आ गए ना। हुजूर ने फरमाया, जिस औरत ने मर्द की मुशाबत इख्तियार की और जिस मर्द ने औरत की मुशाबत इख्तियार की, अल्लाह उसके रसूल की और तमाम मलाइका की और तमाम लोगों की उसकी लानत हो। आप देखो लड़के नौजवान औरतों की तरह लिबास पहने, चमकीले, आज उनकी आप देखो, बाल उनके देखो, पूनियां लगी हैं, चेहरा उधर खड़े करके खड़े हो तो पता ही नहीं कर सकते कि ये मर्द खड़ा है या औरत खड़ी है। ये है माशरे में बुराइयां नहीं है, बोलो, कान छिदवा रहे लड़के नहीं, हाँ, हाथों में कंगन पहन रहे नहीं, या मर्दों की औरतों की मुशाबहत है, लानत है अल्लाह के रसूल। आज औरतों को देखो मर्दों की तरह, बाल छोटे छोटे, मर्दों की तरह लिबास, ये भी मर्दों की मुशाबहत है, मर्दों की तरह चलना, ये भी मर्दों की मुशाबहत है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। आज हमारे नौजवानों की जवानियां बजाय रसूलुल्लाह के दीन की खिदमत नौकरी में गुजरनी चाहिए थी, आज वो अक्सर मोबाइल में नौजवानों की जवानियां जाहिर हो रही। यही वजह है कि आजकल के नौजवान अक्सर बेकार हैं, कारोबार नहीं मिल रहे। दुआ करें, तावीज दें, फला दें, भाई अल्लाह की इबादत करो। ये अल्लाह के रसूल क्या फरमा रहे हैं, अगर नौकरी नहीं मिल रही, इस वक्त को जाया मत करो, अल्लाह की इबादत करो, आखिरत की तैयारी करो। अल्लाह इस तैयारी में तुम्हें दुनिया की अल्लाह नेमतें अता फरमाए। वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, जिसने गुनाह करते हुए अल्लाह से हया की, अल्लाह ऐसे आदमी को 2 जन्नतें अता फरमाए, 2 जन्नतें अता फरमाए। हज़रत उमर के दौर में एक नौजवान था, मुख्तसर कर रहा हूं खुलासा, एक औरत ने उसे नौजवान एक औरत ने खूबसूरत और दावत दी। जब वो उसके पास गए तो उसने कहा, मैं अल्लाह से डरता हूं, उस पर खौफकारी हो गया, बेहोश हो गया। हज़रत उमर को पता चला कि एक नौजवान आता था, या इबादत करता था, नजर नहीं आ रहा। बताया गया कि वो फौत हो गया, उसके साथ ये मामला हुआ। आप उसकी कब्र पे तशरीफ ले गए और उस कब्र पे खड़े होकर पूछा कि मैंने अल्लाह के कुरान की आयत पढ़ी है, वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, कि अल्लाह खौफ रखने वालों को 2 जन्नतें देता है।
عمل کرنے والوں کو ایک جنت دیتا ہے. کیا بتا تو نے اپنے رب کے وعدے کو کیسا پایا؟ اندر سے آواز آئی، اے امیر المومنین، میرے رب نے مجھے 2 جنتیں عطا فرمائی، میں نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا ہے. اللہ اکبر. اے پیارے نوجوانوں، میں آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ اپنی مسجدوں سے محبت کیجیے. اللہ سے مانگیے، یا اللہ ہمارے دلوں میں مسجدوں کی محبت ڈال دیں، اور ان مسجدوں کو قرآن کی تلاوت سے آباد کرو. اللہ تمہاری دنیا بھی آباد فرمائے گا، تمہاری قبریں بھی اور تمہاری آخرت بھی آباد فرمائے گا. اللہ کی طرف بڑھو، اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو، اچھے لوگوں کی صحبت میں، جو شدت پسند نہ ہو، جو فتنہ پرور نہ ہو، جو اپنی تشہیر یا اپنی نمود و نمائش کے لیے تمہیں استعمال نہ کرے، جو تمہیں خاص اللہ کا بندہ بنائے، رسول اللہ کا سچا امتی بنائے. ایسے بزرگوں کی صحبت اختیار کرو تو ان دنیا کے فتنوں سے امان پا جاؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، فتنوں کے دور میں جو شخص ابن لبون یعنی وہ اونٹ کا بچہ جو نہ سواری کے قابل ہے، نہ وہ دودھ دے سکتا ہے، نہ کوئی اور کام کر سکتا ہے، جو اس کی طرح بن کے زندگی گزارے گا وہی کامیاب ہو جائے گا. آج حضور صحابہ کو کہہ رہے ہیں نجات پاتے ہو تو زیادہ وقت گھر میں گزارا کرو. چلو آج آپ کو ایک اور بھی بات دیتا ہوں حضور کی حدیث کی روشنی میں. آپ کسی خانقاہ میں نہیں جا سکتے، آپ مسجد میں نہیں آ سکتے، خدا کے لیے آپ اپنے گھر میں رہ جائیں، آپ اپنے گھر میں رہیے اور اپنے اس موبائل کا صحیح استعمال کیجیے، اپنی نظر کی حفاظت کیجیے، اس کا صحیح استعمال کریں. اگر آپ نے آج کے دور میں موبائل کا بھی صحیح استعمال کر لیا تو آدھی نجات آپ کو اس کے صحیح استعمال سے بھی مل جائے گی. آج اکثر برائیاں اسی سے جنم لے رہی. دعا کرو اللہ اس فتنوں سے حضور کی امت کو محفوظ فرمائے، اللہ میں اچھا استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اپنی جوانی کو غنیمت جانیں. بڑھاپا جب آتا ہے تو بڑھاپے میں جوڑ کمزور ہو جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کئی بڑھاپے میں رفع حاجت کے لیے واش روم میں جانے کے لیے بھی سہارے کے محتاج بن جاتے ہیں. آج جوانی ہے، اس کی قدر کریں، اس کو ضائع نہ کریں. اس کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے. دنیا بھی کماؤ، دنیا کے ساتھ دین بھی کماؤ، دین بھی کماؤ. دنیا والوں سے محبت نہ کرو، دنیا کے کسی محبوب کی زلف کے اسیر نہ بنو، مدینے والے آقا کی زلفوں کے اسیر بن جاؤ. اللہ اکبر. دنیا میں کسی کو اپنا محبوب نہ بناؤ، محبوب خدا کو اپنا محبوب بنا لو. سبحان اللہ. یہ وہ محبوب ہیں اگر دنیا میں آپ رہیں تو آپ کے لیے آج بھی سرکار اپنی قبر انور میں امت کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں. اور اگر مر کے قبر میں جائیں جہاں دنیا کے محبوب منہ موڑ کے آ جائیں، وہاں بھی مدینے والا بدعا کا چہرہ لے کے آپ کی قبر میں آ جائیں. اللہ یا رسول اللہ یا پر تو اپنی جوانیوں کی قدر کیجیے. اور جو بزرگ حضرات ہیں یہ بھی مایوس نہ ہو. اس بڑھاپے میں آپ اپنی جوانیوں میں جو کچھ غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں اپنے رب سے معافی مانگیے، اپنے رب سے رجوع کیجیے، اپنی اصلاح کیجیے. مرنے کے بعد پھر مہلت کا دروازہ بند ہو جائے گا، پھر رونا دھونا کام نہیں آئے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کسی آدمی کا دل اتنا سخت ہو گیا ہو، اسے رونا بھی نہ آتا ہو، تو رونے جیسا منہ بنا لے تو اللہ پاک اس سے بھی رحم فرما دیتا ہے. اللہ اکبر. کہہ تو اللہ سے ایک دن یا اللہ قصور ہو گئے، غلطیاں ہو گئی، معذرت خواہ، معافی چاہتا ہوں، معاف کر دے، تیری نعمتیں بے حساب ہیں، مجھ سے یہ غلطیاں نہیں ہونی چاہیے تھی، پر بندہ ہوں، کمزور ہوں، یا اللہ گناہگار ہوں، سیاکار ہوں، بدکار ہوں، نالائق نکما جیسا بھی ہوں، پر یا اللہ تیری ذات کا انکار تو نہیں کرنے والا، تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوا. مجھے پتا ہے کہ تو نہیں معاف کرنا ہے، دیر سے ہی صحیح پر آیا تو تیرے پاس ہونا معافی لینے. یا اللہ معاف کر دے. جب بندہ معافی مانگتا ہے اللہ فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتا ہے فرشتوں دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ اس کا ایمان ہے کہ معاف بھی وہی کرنے والا ہے، پکڑ بھی وہی کرنے والا ہے. تو بندو اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جس چیز سے معافی مانگ رہا ہے معاف کر دیا ہے، جس چیز کو مجھ سے مانگ رہا ہے میں نے وہ عطا کر دیا. اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا کریم ہے. اس کی رحمت کو کوئی سمجھ کسی ترازو میں اسے تول نہیں سکتے. آج ایک باپ اپنے بچوں کے لیے کتنی قربانیاں دیتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا 99 حصے اللہ کے پاس ہے رحمت کے، یہ ایک حصہ ہے جو باپ کو بھی دیا، جو بچوں سے محبت کرتا ہے. جانوروں میں بھی تقسیم کیا، انسانوں میں، ہر مخلوق میں تقسیم کیا. یہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ بڑے چھوٹوں پہ شفقت کرتے ہیں، چھوٹے بڑوں کا ادب کرتے ہیں، استاد شاگرد سے محبت کرتا ہے، مرشد مرید سے محبت کرتا ہے. یہ وہ ایک حصہ ہے جو تقسیم ہوا ہے. ایک ماں اپنے بیٹوں کے لیے کیا کر سکتی ہے اگر اس کے سامنے کچھ پیش کیا جائے کہ تیرے بیٹے کی
तेरे बेटे की जिंदगी चाहिए, अगर तू उसके मुकाबले में जिंदगी दे दे तो तेरे बेटे की जिंदगी बच सकती है। बताओ कोई ऐसी माँ है जो अपनी जिंदगी बचाए और अपने बेटे की जिंदगी को कुर्बान कर देगी? माँ कहेगी एक बार नहीं 10 बार भी अगर मुझे अल्लाह जिंदगी दे तो मैं अपने बेटे की जिंदगी पे कुर्बान करती हूँ। ये एक हिस्सा है जो तकसीम हुआ है। क्या हुआ है? तकसीम हुआ है। 99 हिस्से अल्लाह के पास है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कयामत वाले दिन ये एक हिस्सा भी उसमें शामिल हो जाएगा। 100 के 100 हिस्से मेरे रब ने मेराज की रात मुझसे वादा फरमाया, महबूब ये 100 हिस्से तेरी उम्मत पर मैं तकसीम फरमाऊंगा। अल्लाह अकबर। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, गनीमत जाने अपने अल्लाह की दी हुई इस जवानी को, गनीमत जाने। तो मैं आपको दावत दूंगा कि हमारी तैयबा मस्जिद में भी अल्हम्दुलिल्लाह जुमेरात को एक सिलसिला होता है, इतवार को एक सिलसिला होता है, पीर को एक सिलसिला होता है। अल्हम्दुलिल्लाह आप तशरीफ लाइए, आइए हमारे साथ जुड़िए। अल्लाह वास्ते की दोस्ती रखिए, अल्लाह वास्ते का ताल्लुक रखिए। मैं आपको इन महफिलों की दावत दे रहा हूँ, मैं अपने लिए दावत नहीं दे रहा। महफिल में आइए, महफिल के बाद भरे घर चले जाइए, हमें ना मिलिए, हैं चले जाइए, पर अल्लाह के रसूल का पैगाम जरूर सुनते रहिए, अच्छी सोहबतों में आते रहिए, अपने नफ्स को अल्लाह वालों की सोहबत में रखिए। इससे क्या होता है कि अल्लाह के रसूल की बातें सुन के इंसान का नफ्स हया करता है गुनाह करते हैं। अब एक इंसान है जिसको पता नहीं है, वो गुनाह पर तले हो जाता है। अब एक आदमी जब सुनता है ना कि अल्लाह ने ये फरमाया, कुरान में ये है, हदीस में ये है, बुजुर्गों ने ये फरमाया, तो इंसान फिर गुनाह करते हुए हया करता है। क्या करता है? हया करता है। अल्लाह अकबर। एक हदीस पाक अल्लाह के नबी ने इस हदीस पाक में बारे में फरमाया, ये हदीस कुदसी है। हदीस कुदसी वो होती है कि अल्लाह अपने महबूब से फरमाता है कि ये मेरी बात है, आप अपनी जुबान से इरशाद फरमा दीजिए। बात रब की होती है पर जुबान किसकी होती है? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। सरकार ने फरमाया अगर बंदा हर वक्त अपने सामने अल्लाह के इस फरमान को सामने रखे तो कई गुनाहों से बच जाता है। वो क्या है? हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान, अल्लाह फरमाता है कि जब इंसान गुनाह करता है ना तो अल्लाह फरमाता है, ए बने आदम, तूने गुनाह करते हुए इतने इत्माम किए हैं, लोगों से ओझल हुआ, कमरे में आया, कमरे के दरवाजे को भी बंद किया और फिर उसमें भी लाइट भी बंद कर दी ताकि तुझे लोग ना देख सके, तो लोगों की नजरों में ना गिर जाए। तो अल्लाह फरमाता है, ए बने आदम, तूने लोगों से भी मुझे हकीर जाना है, तू लोगों से तो गुनाह करते हुए हया करता है, उनकी नजरों से तो छुपता है, तेरा रब तो तुझे देख रहा है। क्या तुझे गुनाह करते हुए रब से हया नहीं आती? रब से हया नहीं आती? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अगर गुनाह करते हुए या हर वक्त चलते फिरते कोई मामला करते हुए इंसान इस अल्लाह के इस फरमान को सामने रखे तो कई गुनाहों से इंसान गुनाहों से बच जाए, कई गुनाहों से बच जाए। मेरा रब तो मुझे देख रहा है। हजरत उमर ने अपनी बहू एक लड़की को बनाया, गरीब सी लड़की। माँ ने कहा बेटा आज दूध कम है, पानी मिला दे। माँ ने कहा कम है, पानी मिला दे। बेटी ने कहा अमीरुल मोमिनीन ने हुक्म दिया है पानी नहीं मिलाना, खालिस दूध बेचना। माँ ने कहा बेटा अमीरुल मोमिनीन कौन सा देख रहा है? अमीरुल मोमिनीन कौन सा देख रहा है? बेटी भी नेक थी। बेटी ने कहा अम्मा अमीरुल मोमिनीन नहीं देख रहा, अमीरुल मोमिनीन का खुदा तो देख रहा है। हाय हाय हाय। आपने अपने खादिम हजरत असलम से फरमाया ये घर, ये दरवाजा, ये गली महफूज कर लो। अगले दिन आपने बच्चों को बुलाया, अल्लाह अकबर, कि कौन है? मैं एक रिश्ता देख के आया हूँ, तुम में से किसी ने देखा भी नहीं, मैं चाहता हूँ कि वहां रिश्ता करूँ। एक आपका बेटा तैयार। अल्लाह अकबर। जब वो बहू घर आई, जब आप उम्र खिलाफत सर अंजाम देने के लिए जाते तो आप फरमाते बेटी बस एक ही जुमला कहा कर कि उमर तो नहीं देख रहा, उमर का खुदा तो देख रहा है। उसी की नस्ल से अल्लाह ने फिर उमर बिन अब्दुल अजीज जैसा हुक्मरान अल्लाह ने उम्मत मुस्लिमा को अता फरमाया कि जिसके दौरे खिलाफत में हिरन और शेर, भेड़िया और बकरी एक साथ चरते थे, इतना पाकीज़ा उनका दौरे खिलाफत था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो मेरे दोस्त बात कहाँ बनी? किरदार से। आज हम किरदार अच्छा कर ले तो खुदा की कसम आज ये जो अहले गज़ा में जुल्म हो रहा है ये जुल्म खत्म हो जाए। आज हमें अपना किरदार अच्छा करने की जरूरत है। तो मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, दावत फिक्र है कि हमें दुनिया कमाने से मैं मना नहीं करता। अच्छा बंगला, अच्छी कोठी, अच्छा घर अल्लाह आपको अता फरमाए। अगर इधर मंजूर कॉलोनी में रहते हो, मैं दुआ करता हूँ, मिंबर इस पे बैठा हूँ, मस्जिद की मिंबर पे बैठा हूँ, अल्लाह आप लोगों को इससे अच्छी कॉलोनियों में अल्लाह अच्छे घर, कुशादा घर अता फरमाए।
अल्लाह आप लोगों की औलाद का मुस्तकबिल रोशन बनाए। अल्लाह आपको दुनिया का जो असबाब हैं, जो नेमतें हासिल करने के, पैसा है, दीगर चीजें, अल्लाह वो सारी फरामानी अता फरमाए। पर एक दुआ ये भी देता हूँ कि रिज़्क़ हलाल दे और इसके साथ साथ अपने महबूब की उम्मत को नमाज़े पंजगाना की तौफीक भी दे, हिदायत की राहों पे चलने और सिराते मुस्तकीम पे चलने और उस पर इस्तिकामत भी अता फरमा। इस्लाम ये कहता है कि अगर अल्लाह ने नेमतें दी हैं तो वो तुम्हारे लिबास से, तुम्हारे मामलात से उन नेमतों का इजहार भी होना चाहिए, उन नेमतों का इजहार भी होना चाहिए। इस्लाम ने बुखल को पसंद नहीं फरमाया, इस्लाम ने सखावत को पसंद फरमाया। सखावत को क्या किया है? पसंद फरमाया। सखी अल्लाह का दोस्त है, हदीस पाक का हुक्म है, सखी क्या है? अल्लाह का दोस्त है। बखील अल्लाह का दुश्मन है, वो अल्लाह के दिए हुए माल को अल्लाह की मखलूक से महरूम रखने वाला है, इसलिए दुश्मन है। सखी इसलिए दोस्त है क्योंकि अल्लाह देने वाला है और लेने वाला, अल्लाह की मखलूक में तकसीम करने वाला है, इसलिए अल्लाह ने उसे दोस्त बनाया। अल्लाह अकबर। दूसरी चीज, अपनी सेहत को, अपनी बीमारियों से पहले गनीमत जानो। आज सेहतमंद हो, अपनी सेहत को गनीमत जानो बीमारी से पहले, वरना किसी अस्पताल में चले जाओ और अस्पताल में जाके देखो, वहां तुम्हें पता चल जाएगा कि सेहत की कितनी बड़ी कदर है। आपको पता है जब इंसान बीमार होता है, एक जुकाम भी लग जाए तो इंसान दुनिया की सारी चीजें भूल जाता है उस जुकाम की मर्ज में ही। और फिर आजकल ऐसी ऐसी बीमारियां आ गई, अल्लाह की पनाह। दुआ करो अल्लाह ऐसी बीमारियों से हमें महफूज फरमाए और ऐसी बीमारियों जो मुब्तला हो चुके हैं अल्लाह उन्हें जल्द शिफा अता फरमाए, जिनके इलाज मुआवजे की हमें हिम्मत ना हो। कैंसर बहुत बढ़ता जा रहा है आजकल, ये जो मारे, गुटके, पान, ये ऐसी चीजें हम गंदी खा रहे हैं, ग़िज़ाएं हमारी साफ सुथरी नहीं रही, ग़िज़ाएं आलूदा हो गई हैं। आज ये इंसान खून का कैंसर, मुंह का कैंसर, जिगर का कैंसर, पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां आ गई जिनके इलाज मुआवजे की गरीब हिम्मत ही नहीं रखता। दुआ करो अल्लाह जो मुब्तला हो गए अल्लाह उन्हें शिफा अता फरमा दे, और जो महफूज है अल्लाह उनको अपनी सेहत की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारी बड़ी बीमारियों को छोटी बीमारियां बना के उनका कफारा बना दे और हमारे गुनाहों को अल्लाह माफ फरमा दे। अपनी सेहत की कदर कीजिए, अपनी अहले खाना के लिए अपनी सेहत को महफूज कीजिए, बच्चों के लिए महफूज कीजिए और अपनी उस सेहत का शुक्राना अदा करने के लिए नमाज़े पंजगाना का भी एहतमाम फरमाइए। नंबर 3, अपनी मालदारी को अपनी तंगदस्ती से पहले गनीमत जानो। आज अल्लाह ने पैसा दिया है, रुपया है, पैसा है, घर है, सब कुछ है, आज इज्जत के साथ लुकमा खा रहे हो ना, इसको गनीमत जानो। आपके माशरे में कई ऐसे हैं जो अच्छे निवाले को भी तरसते हैं। आज कुछ ऐसे भी हैं कि अभी एक मरहले से गुजरते हैं, अगले मरहले की उनको फिक्र पड़ जाती है, ऐसे भी तंगदस्त हैं। और कई ऐसे भी हैं जो मालिक मकान को माहाना किराया भी नहीं दे सकते। कुछ ऐसे भी हैं कि जो भारी इस वक्त बिल आ रहे हैं वो बिल भी अदा नहीं कर सकते। तो अगर अल्लाह ने दी है ये मालदारी तो अपने पैसे को इसराफ में, फजूल खर्चियों में, लोग मंगनियों पर लाखों रुपए, एक गरीब की कई बेटियों की शादियां हो जाएं, लेकिन जिनको अल्लाह ने दिया वो मंगनियों पर लाखों करोड़ों रुपए उड़ा रहे हैं। ये इसराफ है, ये अल्लाह की नेमतों की नाशुक्रिया है। अगर इतना ही शौक है ना खर्च करने का, किसी गरीब की बच्ची को इज्जत के साथ रुखसत करवा दो, इससे अल्लाह भी राजी होगा। अल्लाह तुम्हारे बच्चों को भी बहुत दुनिया आखिरत की खुशियां अता फरमाएगा। अल्लाह अकबर। और अपनी फरागत को, अपनी मसरूफियत से पहले गनीमत जानो। आज वक्त है, फुर्सत है, लम्हात है, तो इसको गनीमत जाने, इसको जाया मत करें। मस्जिद से चले गए तो रास्ते में तस्बीह पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें, जरूरत की बात भी करें, लेकिन ज्यादातर वक्त उस फुर्सत में कुरान पाक की तिलावत में, आखिरत की तैयारी में, दुनिया की भी तैयारी करो, आखिरत की भी तैयारी करो। हमारे तो बुजुर्ग फरमाते हैं, हाथ कार वालते दिल यार, हाथ काम कर रहा हो, दिल अल्लाह अल्लाह कर रहा हो। अल्लाह अकबर। ये कैफियत उसी वक्त ही मिलेगी किसी हम कारीगर के पास बैठेंगे जो हमारे दिल को अल्लाह वाला बना दे। अल्लाह अकबर। ये जुबान का कलमा पढ़ना और है, दिल का कलमा पढ़ना और है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी आंखें सोती हैं, दिल जागता है। और बास लोग जो इस राह पे चलते हैं तो अल्लाह उनके मुर्दा दिलों को भी जिंदगी अता फरमा देता है। आंखें बंद हो जाती हैं, डॉक्टर कह देते हैं मर गया, पर दिल अल्लाह की याद में धड़क रहा होता है। लोग कहते हैं जिंदा है, अरे वो जिंदा नहीं है। जो अल्लाह की जिक्र की छुरी से अपने मुर्दा दिल को जिंदा कर दे तो अल्लाह फिर उस दिल को मरने नहीं देता, मर के भी उसकी याद में वो दिल धड़कता रहता है। अल्लाह ये दिल उससे लगाइए। ये खाना खुदा है, आपके अंदर भी एक मस्जिद है, कभी इसको भी झांक के देखिए, कभी इसको भी झाड़ू पोछा कीजिए, कभी इसकी भी सफाई सुथराई कीजिए, कभी इसको भी संवारिए कि घर वाला इस घर पर अपनी नजर रहमत फरमा दे। अल्लाह अकबर। और आखिरी बात, अपनी जिंदगी को अपनी मौत से पहले गनीमत जानो। अपनी जिंदगी को अपनी मौत से पहले गनीमत जानो। आज जिंदगी है,
کل موت ہے، روزانہ جنازے اٹھاتے ہیں۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ قبرستان کے دروازے پر جا کر ذرا دیکھو کتنے وہ تھے جن سے ملاقاتیں ہی لوگوں کی ختم نہیں ہوتی تھی۔ ایک جاتا تھا، دوسرا آ کے بیل بجاتا تھا، جناب مجھے آپ سے یہ کام ہے، مجھے آپ سے، آج آپ نظر نہیں آئے، خیریت فلاں ہے، لیکن جب وہ مر گئے تو آج قبریں اس قبرستان میں، اس ویران خانے میں لوگ پڑے، کوئی فاتحہ بھی جا کے پڑھنے والا نہیں ہے، کوئی قبر تک چند قدم بھی جا کے چل کے ان سے حال احوال پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ سے اس زندگی کو لگاؤ، مرنے کے بعد مرو گے نہیں، اللہ تمہیں قبر میں زندگی عطا فرمائے گا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت سے محبت بھی کریں اور محبت کو اس مقام پہ لے جائیں کہ یہ محبت مودت میں بدل جائے، محبت مودت میں بدل جائے۔ اور بعض صوفیاء نے فرمایا جہاں محبت کا یعنی جہاں محبت کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے آگے مودت کا آغاز ہوتا ہے۔